بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ جیسے کہ آپ آج ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ خطوط البیان کے اسناد کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے جعفر نجاری صاحب نے اپنی ایک کالر کی گفتگو کے اوپر اسے صاف اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ خطوط البیان جو ہے یہ گلات کا غالیوں کا ہے، اس سے کوئی اہل تشیع کا کوئی سلسلہ یا کوئی ربط نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ علماء فقہا مجتہدین ہمیشہ سے ہر اس بات کا انکار کرتے ہیں جن کی عقل سے باہر ہو، ان کی سمجھ سے باہر ہو، جہاں پر ان کی توحید کا اتنا ہلکا سا شیشہ جو تھوڑی سی بات کا اتنا چور ہونے کے لیے ہو، پتہ نہیں ان کی کیسی توحید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ اس بات کے یہ مخالف رہے ہیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہو، کیونکہ اس وجہ میں ان کو بہت دیر لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انگلش زبان تھی، انگریزی، انہوں نے اس زبان کو کافروں کی زبان کہہ کر اس کا انکار کیا۔ پھر جب پریس آیا، اس پریس سے قرآن پاک اور دوسری کتابوں کی پرنٹنگ کے لیے انہوں نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ پھر آج آپ کے سامنے بھی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ پھر جب یہ کیمرہ آیا اور تصویریں بننے لگی، انہوں نے تصویر کھنچوانے کے اوپر بھی شرک کے فتوے دیے اور پھر جانے کیا کچھ کہا، اور آج ان کی اپنی مکمل ٹیمیں ہیں جو ان کی پوری سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتی ہیں، ان کی تصویریں، ایونٹ کی تصویریں، مجالس کی تصویریں، وہ سب یہ نشر کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم بات کریں گے خطوط البیان کے اسناد کے اوپر۔ تو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک یہ شرح ہے اور بہت خوبصورت شرح لکھی گئی ہے اس کتاب کے بارے میں، میں اس سے یہ کچھ پیش کر رہا ہوں، آپ خود بھی پڑھیں۔ یہ ہے کہ اس خطوط بیان کی طرح کی روایت کا انکار کرنا در حقیقت فضائل اہل بیت، عصمت، طہارت اور ان کے معنوی مقامات کا انکار ہے۔ ان روایات کی روح گردانی سے یعنی کہ جو سید جلال الدین کی نظر میں اہل بیت رضی اللہ عنہم پر ظلم ہے۔ کاش فقط خطوط بیان جیسی روایات کی سندی اعتبار سے خدشہ اور اشکال کرتے ہیں اور اس کے مدلول یعنی مفاہیم و جملات کا انکار نہ کرتے، جبکہ اس طرح کی بہت ساری روایات بحر الانوار جلد 39 صفحہ نمبر 335، جلد 25 صفحہ نمبر 22، 23 اور 24 پہ بھی ہے، اس کے علاوہ 376 پہ بھی ہے۔ اس کو مفات الجنان میں دعائے ناجیہ میں بھی یہ جملے مل جاتے ہیں جو رجب میں پڑھی جاتی ہے۔ زیارت متعلقہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے جملے مل جاتے ہیں، اور کتاب توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب میں بھی یہ مل جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو بحر الانوار جلد نمبر 39، جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا، صفحہ نمبر 335، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ایسے جملے مل رہے ہیں جیسے انا حجت اللہ، وانا خلیفۃ اللہ، وانا صراط اللہ، وانا باب اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ اس سے جو اگلی 2 نمبر حدیث ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ و وزیرہ و وارث انا اخو رسول اللہ و وصی حبیب، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی وہ جملے آپ کو مل رہے ہیں۔ اس سے آگے صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 334، اس کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو مولا کے ایسے جملے مل رہے ہیں۔ انصار اللہ، یہ سارے جملے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی موجود ہے جو کہ خطبے میں موجود ہے۔ اس کے بحر الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 22، اس میں بھی سارے جملے مل رہے ہیں جو وہاں پہ مولا نے بیان کیے۔ وقت کمی ہے اس لیے سارے پڑھ کے نہیں سنا سکتا، اس سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کے اوپر میں بھی ایسے جملے موجود ہیں خطوط البیان میں مولا نے بیان فرمائے ہیں۔ صفحہ نمبر 23، یہ صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 25، اور یہ
सफ़र नंबर 372 जो मैंने बताया था उधर से। ठीक है जी, आपने खुद देख लिया कि जो जुमले आपके खुद बयान में मिलते हैं और दूसरी किताबों में भी, दूसरे रिवायात और दूसरे तरीकों से भी मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। अब ये शेख रसूल साहब की जो किताब थी जिसका हवाला दिया गया था, आप उसको भी देख लें। शेख रसूल की किताब तौहीद में भी ऐसे जुमले मिलते हैं। ये सारे किताब तौहीद सफ़र नंबर भी आ रहा है और जो जुमले लिखे गए हैं उर्दू में किताब में जो है उसको भी आप देख सकते हैं, इसमें सब वो अल्फाज मिल रहे हैं। लिहाजा अब मैं आपको मुख्य किताबों से इसके हवाले दिखाता हूँ जो कि बयान किए गए हैं। एक मोकम दलील है कि यही बात खुल बयान में पाई जाती है कि बहुत सारे उलमा ने ये इसको अपनी किताबों में नकल किया या इसकी वजाहत में शुरहात लिखी है और यही बड़ी दलील बनती है। इन किताबों में से कुछ मुतारिक हाजिर खिदमत है। शेख अली बारजनी जल्दी हायरी ने किताब अल दाम नासिब में इस खुतबे के 3 नुस्खे बयान किए हैं। मोहम्मद इब्न तलहा शाफी अपनी किताब अल दुआल मुनज़्ज़म फी इसरार आज़म में इसको जिक्र किया है। शेख सराजुद्दीन हसन ने इस खुतबे कुछ हिस्सा किताब दारुल मुनज़्ज़म में नकल किया है। फ़ख्र सादात मुहक्किक असर सैयद अब्दुल्ला शब्बर ने अपनी किताब अलामात ज़हूर में इस खुतबे को मनअन जिक्र किया है। हाफिज़ रजब बरसी ने अपनी किताब बशार अनवार में इस खुतबे के बाद फ़ुक़रात और जुमलात को खुतबे का नाम लिए बगैर नकल किया है। उसके बाद इरफान इस्लाम के अजीम नाम काजी सईद कुम्मी हदीस अक़वामा की शरह करते हुए इस खुतबे का कुछ हिस्सा नकल करते हैं। फरमाते हैं कि इस खुतबे के उलमाए शिया और गैर शिया मशहूर और मारूफ होने के सबब इसकी सनद जिक्र करने को ज़रूरी नहीं समझता। वाक़े के कुम्मी इस खुतबे के कुछ हिस्से काजी सईद कुम्मी के जिक्र करते नुस्खे से जिक्र करके इसकी शरह फरमाई है, जिनकी किताब जाम शतात की आखिर में छाप है। इसके अलावा नूर अली शाह ने इस खुतबे का तर्जुमा शरह नमा के शेर और नज़म की सूरत में पेश किया। आरिफ कामिल मोहम्मद इब्न महमूद मुलक्कब बिद्दार ने अपनी किताब खुलासत तर्जमान फी तावील खुतबतुल बयान में इस खुतबे जुमलात की तफसील के साथ बयान फरमाया है। मौलवी अब्दुल महदी ने इस खुतबे के बाद जुमलात की शरह फरमाई है। मिर्जा अबुल कासिम इब्न मोहम्मद नबी ज़हबी शराजी ने अपनी किताब मालिम तावील और बयान में इस खुतबे की शरह बयान फरमाई है। किताब क़ुर्रतुल अयून में इस खुतबे और खुतबा तंजिया को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत दी गई है। मरहूम मुल्ला फैज़ काशानी ने अपनी किताब अल कलमात मकनूना में इस खुतबे का जिक्र करने के साथ साथ इस खुतबे के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मंसूब होने के उलमा के दरमियान मशहूर होने का इद्दआ किया है। मरहूम आलिम माकूल व मनकूल दादू कैसरा ने अपनी मशहूर ज़माना किताब शरह फसूल हक्म इसको बयान फरमाया है। अब्दुल समद हमदानी ने अपनी किताब बहारुल मारिफ में इस किताब को खुतबा जिक्र किया है। अल्लामा मोहम्मद सालेह अल मज़ंदानी ने अपनी किताब शरह उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 241 में इसको बयान फरमाया है और लिखा है अल मुक़द्दिस अमीरुल मोमिनीन इस्लाम कमा क़ाल फ़ी क़ुर्रतुल बयान अल लौहुल महफूज़ व अल्लम इल्मुहु मलाइकत वरसत तालिबात यहतमिलु मुतालिकात नसी तक़ज़िया। आयतुल्लाह शेख जवाद तबरेज़ी रहमा ने अपनी किताब अनवार इलाहिया में खुतबा बयान और खुतबा तंजीया के बारे में किए गए सवालों के जवाब भी बयान फरमाए हैं। मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद रज़ा तुलसी ने अपनी किताब अल शिया व रजा में जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 148 में खुतबा बयान के बाद जुमलात को कबूल फरमाया है। शेख जाफर नकदी ने अपनी किताब अनवार अलविया में इस खुतबे का फरमाया है। मरहूम मीर जहानी तबातबाई ने इस खुतबे को तर्जुमे और उसके मुतारिक और मुनाबे के साथ अपनी किताब नवाइब उद दाहूर में जिक्र किया है, जो बाद में एक मुस्तकिल किताब के वास्ते भी छापी गई। ख्वाजा अहमद शेराजी ख्वाजा अहमद शराजी
المتخلص तफ़ानी ने खुतबत और बयान की एक शरह लिखी है, जिसको इस्माइल बाश बगदादी ने हिदायत आरफीन के एक अवल सफ़ा नंबर जिल्द एक सफ़ा नंबर 153 में जिक्र किया है। शाहपुर काशानी ने इस खुतबे को मंजूम सूरत में किताब में जिक्र किया है। मिर्ज़ा अबुल कासिम बिन मोहम्मद नबी ज़हबी शिराजी ने अपनी किताब मालिम तावील और तबियान फी शरह इसरार खुतूत बयान में इस खुतबे की शरह और तावील बयान फरमाई है। मरहूम मरजा माकुलात मुला सदरा ने अपनी किताब असफार जिल्द नंबर 7 में खुतबे के कुछ जुमलात को अमीर मोमिन मंसूब फरमाकर उनसे इस्तदलाल किया है। उसके बाद अहमद बिन साद हुसैनी ने तर्जुमा किया है। मोहम्मद करीम बिन मोहम्मद हुसैन मूसवी ने अपनी किताब हक़ीक़तुल इस्लाम में इसका तर्जुमा तशरीफ फरमाई है। इसहाक सौगंदी ने अपनी किताब हल मुश्किलात खुतूतुल बयान में इस खुतबे की शरह फरमाई है। सैयद हुसैन कुदसी शरीफी ने अपनी किताब शरह खुतूतुल बयान में इस खुतबे की मुफस्सिल शरह फरमाई है। सैयद हुसैन इब्न सैयद गैबी ने इस खुतबे को तुर्की ज़बान में खुतूतुल बयान की शरह फरमाई है। मोहम्मद तकी मजलसी वालिद मोहतरम अलामा मजलसी साहिब बहारुल अनवार के यानी कि मोहम्मद तकी मजलसी जो कि अलामा मजलसी बहारुल अनवार के जो वालिद हैं, अपनी किताब शरह खुतूतुल बयान में इस खुतबे की शरह कामिल फरमाई है। उसके बाद गोया अब्दुर्रहमान दमावंदी ने खुद शरह फरमाई है। इब्न अब्दुल फताह के तरफ भी इस खुतबे की शरह मंसूब है। अब्दुल रहीम दामावंदी ने किताब अल-क़ज़ा वल क़दर में इस खुतबे की नहवी एतबार से शरह फरमाई है। अमीर मोहम्मद साहल ने अपनी किताब मुनाजात मुर्तज़ज़ा दर शरह खुतूत बयान में इसके खुतबे की शरह की है। आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली ने अपनी किताब सिरातुस सलूक में इस खुतबे के बारे में फरमाया हुआ है। उसके बाद अगर हम हदीस की ज़बान हासिल ना हो तो हम पर वाज़ेह हो जाएगा कि अक्सर किताबों जैसे मिशाकुल अनवार और यकीन हाफ़िज़ रजब बसी की तालीफ और तफसीर अफराद कूफ़ी सही किताबों में है और इनमें कोई गलू नहीं है। और इस तरह आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली ने अपनी दूसरी किताब खैर असरार द रद्द जबर कद्र में भी इस तरह फरमाते हैं। आगा वज़ूर तहरीर की किताब अज़रिया तसनीफ़ शिया में इब्न शहर आशोब और शेख अबुल फतह मोहम्मद बिन अब्दुल करीम शारिस्तानी की तरफ भी एक शरह इस खुतबत बयान की शरह मंसूब है। इस खुतबत बयान के तर्जुमा और शरह और तावील के मुतालिक की गई दूसरी किताबों की तफसीर से इल्म हासिल करने के लिए आगा वज़ूर तहरीर किताब अज़रिया इला तसनीफ़ शिया की इन जिल्दों से रजू किया जा सकता है। उस्ताद सैयद जलालुद्दीन आश्तियानी की फस्सू और हुक्म लिखी किताब शरह मुक़द्दमल कैसरा में ये आया है। जो कलामात हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से फसलतों पर पहुँचे हैं वो खुतबत बयान, खुतबत तंज़िया, खुतबा इफ्तिखार नामी तीनों खुतबों में है। इस खुतबे को मौलाना रजब अल-बरसी ने हिल्ली रहमान ने अपनी किताब में नकल किया है और बाज़ मुहद्दिसीन ने शेख रजब को इस खुतबे को नकल करने की वजह से उनको भी गलू का मुर्तकिब समझा है। जो लोग मकाम विलायत और कायनात पर वली के इख्तियार से बेखबर हैं उन्हें इस तरह की बातें गलू अमेज़ लगती हैं, जबकि गलू एक बिल्कुल अलहदा सी चीज़ है। मकाम विलायत के बारे में इस तरह की शान बयान करते हुए ये ज़रूरी है कि वली को बंदा और आप समझा जाए, उससे वाजिबुल वजूद तसव्वुर ना किया जाए और मज़ीद ये कि उनके तमाम कमालात को बिन जानिबुल्लाह समझा जाए। जी आप देखते हैं 10 से 11 मिनट लग गए मुझे उन किताबों के नाम लेते हुए जिन किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। लिहाजा अगर अभी भी किसी को शक है तो वो अपने आप में गौर करे कि क्या वाकई वो शिया है, क्या वाकई उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत अली है। मैंने पहले कहा था जो अली को अल्लाह मानता है, जो उसको वाजिबुल वजूद मानता है तो वो तो काफिर है, वो मुशरिक है। और जो मौला अलैहिस्सलाम को नबी के दर्जे में मानता है, नबी माने, वो भी मुशरिक है। लिहाजा गलू जो है वो दीन में होता है और दीनी अहकाम में अपनी राय शामिल करने के ऊपर होता है और किसी भी हुक्म के बारे में अपनी राय, अपना कियास, अपना ज़न बयान करने को कहते हैं। इससे कुरान की आयत मौजूद है, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन में गलू मत करो। कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको, कहीं लिखा हो कुरान मजीद में ला तग़लू फ़ी नबिय्यकुम, ला तग़लू फ़ी वलिय्यकुम, ऐसे कि तुम नबी में गलू ना करो,
तुम उसके वली में गलू ना करो, तुम किसी नफ्स में गलू ना करो, किसी की ज़ात में गलू ना करो, कहीं भी नहीं लिखा है ला तगलु फी दीनिकुम, दीन में गलू ना करो। और जैसे मैंने बयान किया था मौलाना साहब का खुतबा जो कि कुफर के सतून के बारे चैप्टर में है, हिंदुस्तान में उसका भी हवाला मौजूद है, उसका और भी किताबों से हवाले दिए थे, जिसमें मौला भी फरमा रहे हैं कि गलू जो है वो सिर्फ यही है, अपनी राय को दीन में दाखिल करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।